Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, Ji. How was your weekend? It was good? Boring? So, life is a package of boredom and excitement. I hope कि आपका next weekend अच्छा गुजरेगा. भाई जी, last lecture के अंदर हम लोगों ने entrepreneurship की definition को समझने की कोशिश की थी और उसके बाद characteristics को understand करने की कोशिश की थी हम लोगों ने. When it came to definition, important elements that we identified were being an individual who is ready to assume risk and face uncertainty by assembling necessary resources in face of risk and uncertainty हो गया. और उसके बाद ये क्यों कर रहे हैं वो सब कुछ प्रॉफिट और ग्रोथ के लिए. इसके बाद हम लोगों ने जिक्र किया था कि there was a famous psychologist McClellan जिसने एक स्टडी कंडक्ट की थी to identify the common traits of successful entrepreneurs. और उसमें just to give you a quick reflash, we talked about entrepreneurs having this desire for responsibility, preference for moderate risk, then confidence in their ability to succeed. Another thing that is very keyly differentiating, that is they have got this desire for immediate feedback, and not just from the customers, from the people all around them, including their employees as well. Then they tend to possess high level of energy. They are future oriented and they are serial operational in context. The way we can say it कि एक अगर वो business कर लेते हैं, they tend to go for another business in altogether a different industry just to prove themselves. They are skilled at organizing. Now this is something that we take for granted कि जी हर बंदा organization कर सकता है. Actually that is not the case. The people who are good at organizing, first of all, are good at understanding the strengths and weaknesses of the people around them. The employees that they have, the team that they work with, they have very good understanding of every individual's strengths and weaknesses. On top of that, they also have got a strong sense as of what situation would require which kind of person to sort that out. So वो ये नहीं होता, फायर फाइटिंग मोड पे नहीं होते. They will first assess कि what kinds of situation are we encountering और उनके लिए जो बेस्ट टीम में बंदा है वो उसको आगे प्रेजेंट करते हैं और उसको कहते हैं उसको सॉर्ट आउट करें. So organization skill is something that is rare. Not everybody is good at it, but entrepreneurs were found to be strong in organizing. Then we talked about tolerance for ambiguity. So if somebody is tolerant for ambiguous situation, इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि उसके अंदर flexibility. एक rigid plan के ऊपर he would not stick. So if the ambiguous situation requires some extraordinary efforts or action, that person can be expected to go to that length. Whereby जबकि आपके जो traditional आपके जो entrepreneurs हैं या businessmen हैं, they might like to stick to their traditional trading or whatever they are doing, while entrepreneurs would be flexible enough to exploit the opportunities that the situations are offering. Another element that we need to understand with regards to entrepreneurship, while we have gone through the characteristics, next we will try to understand that what are the benefits of entrepreneurship. If we choose to become an entrepreneur or we take entrepreneurship as a profession, तो इसमें हमें फ़ायदा क्या है? First of all, let's go back to your metric class. English का कोर्स हमने पढ़ा था? Yes, sir. English composition वगैरह की बुक वगैरह को यूज़ की थी? हमारे ज़माने में उसमें एक उर्दू का पैराग्राफ होता था, आदमी अपनी किस्मत खुद बनाता है. वो अभी तक अवेलेबल है कि नहीं? Kind of. Here, the best part of being an entrepreneur is that you create your own destiny. Rather than being dependent upon the organization or the individuals that you work with, you are the one calling the shots. Imagine a scenario that you are a very creative person and very sparky, who has got huge potential, but you end up working for an organization that is very traditional and that is in a very static kind of business.
So despite all the characteristics that are required for success, you have them, you possess them, but due to being in the wrong organization, you won't be able to take maximum advantage of all those characteristics. On the other hand, if you go for business, so one way or the other, you will be able to utilize your creativity. You will be able to utilize your potential. And you will be the one deciding that how far do you want to go. When you are into careers in employment, it's not just you, it's the organizational regime as well, whereby उनके जो set patterns हैं, उनके मुताबिक आपकी promotions होती हैं, आपके इर्द गिर्द कितने colleagues हैं, आपके department के अंदर growth का potential कितना है. There's so many variables that would be affecting you if you go for employment. I'm not saying that entrepreneurship is free of constraints, yet आपको पता होता है कि यार अपने पोटेंशियल के मुताबिक मैक्सिमम आप अपने आप को यूटिलाइज कर रहे हो. इसके बाद एक और जो कंट्रीब्यूशन है या बेनिफिट है एंटरप्रेन्योरशिप का, दैट इज ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस. अपार्ट फ्रॉम चैरिटी एंड गिविंग कैश टू बेगर्स, कैन एनी वन ऑफ यू रिकॉल फॉर मी कि लास्ट टाइम आपने कभी किसी को मुफ्त में पैसे कब पकड़ाए थे? Was that charity or sorry? उधार दिए थे? नहीं, मैं जिन पैसों की बात कर रहा हूँ कि आप वैसे ही दे रहे हो यार, with an intention कि not to be returned. जी? बहन भाइयों के अलावा जी कोई किसी को मुफ्त में पैसे नहीं देता. इवन कंसिडर द इंस्टीट्यूशन ऑफ चैरिटी, वो भी हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा हम कहते हैं कि अभी इसको दे दो, बाद में अल्लाह ताला से पूरे करेंगे. दैट्स हाउ इट इज, यू नो, कि चलो जी कल को जब क़यामत का मौका आएगा तो वी विल बी एबल टू टेल अल्लाह ताला कि देखिए जी मेरे पास थे, मैं उसकी आइसक्रीम भी खा सकता हूँ, लेकिन आई रादर प्रेफर टू गिव दैट कैश टू दिस नीडी पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Apart from that, nobody gives out free cash to anybody. Now, अब businessman की या entrepreneurs की contribution किस तरह है यहाँ पे? यार, whenever you pay for anything, any product, any service, you would not do it unless it facilitates your life. आप जो भी product खरीदते हैं, जो भी सर्विस खरीदते हैं, आप उस पे पैसे उसी वक्त लगाते हैं ना जब वो आपको कोई ना कोई कंफर्ट दे रही होती. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने रोजाना की कम्यूटिंग के लिए टैक्सी ड्राइवर रखा हुआ है, विद टैक्सी, उसको पैसे आप वैसे देंगे कभी? नो. वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि घर वाली गाड़ी भी स्पेयर रहेगी, वो कोई और यूज कर लेगा, और आपको ड्राइविंग की फटीक भी नहीं काटनी पड़ेगी, और कन्वीनियंटली आपके घर के गेट से यूनिवर्सिटी तक एंड बैक आपको सर्विस मिल जाती है. Microwaves, ovens, discovered accidentally. हर घर में, वो कोई हमारा कोई रिलीजियस रेलिक तो नहीं है ना कि जी हम ला के रखना है कि जी क्या बात है जी ये हम वहां से लेके आए थे. नहीं. Why do we keep that? We spend money on microwave because वो हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बनाता है. Why do we go for यूफोन सुपर कार्ड? क्योंकि वो कन्वीनियंस दे रहा है, हमें इंटरनेट का पैकेज भी दे रहे हैं, जितने भी दोस्त उस नेटवर्क पे हैं उनके साथ खुली गपशप लग जाती है, जो दूसरे नेटवर्क पे हैं उनके साथ एसएमएस हो जाती है, राइट? सो वन वे और द अदर यू टेक एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विस, एंड यू वुड रियलाइज इट कि वन वे और द अदर दैट प्रोडक्ट और सर्विस इज बेसिकली मेकिंग योर लाइफ इजियर. And that is a direct contribution of being an entrepreneur. Point taken जी? बात समझ आ गई? इसके अलावा एक और benefit, you get a chance to reach your full potential. Usually, I'm sure when you get into your careers, and unless you go for entrepreneurship, you might end up doing jobs in research labs or maybe some research institute.
And one common complaint that you will get to hear from your colleagues, and maybe Allah khair kare aisa na ho, you might be found cribbing कि जी मेरे में तो बहुत potential है, but this organization is sucking me out. मेरी सारे का सारा जो spark है वो kill करके रखती है. Entrepreneurs get a chance to reach their full potential. Imagine Mark Zuckerberg working as a software engineer for someone else. क्या potential है, और उसको आप simply plug in करें किसी employment structure के अंदर, क्या output आपके ज़हन में आती है? We won't get Facebook and he won't get such a good, great success. ऐसा है कि नहीं? इसी तरह आप जितने प्रॉपर्टी मैग्नेट्स हैं उनको निकाल के किसी प्रॉपर्टी एजेंट के दफ्तर में बिठा के देख लें, यू रियलाइज कि नहीं यार ये पोटेंशियल उस तरह का वो फिर रियलाइज नहीं होता. इसके अलावा जी द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, you get a chance to reap impressive profits. To reap impressive profits. You can make lots and lots and lots of money. Here, a quick question. How many of you would love to earn lots and lots and lots of money? Yes, raise your hands. Not everybody, not everybody. There are few exceptions. जो लोग कहते हैं कि बस वो देखे ना, you have got a colleague saying कि मुझे पैसे का कोई शौक नहीं. Hold on. Right, ji, raise your hands. People who would like to love to earn lots and lots of money. Thank you. यार बाकी जितने लोग हैं मैं उनको पीर मानने के लिए तैयार होंगे. इतना सब्र शुक्र हर बंदे के नसीब में नहीं लिखा गया. Right. एक चीज यार आप लोग क्लियर कर लें, ये जितने भी पैसे के शदाई हैं ना, job is not an option for you. Business. Job is not an option for you. इस गलत फहमी में प्लीज मत रहिएगा कि बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स करेंगे, फिर एमएस करेंगे, फिर पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी और व्हाटएवर यू विल परस्यू, और फिर किसी रिसर्च लैब के अंदर साइंटिफिक ऑफिसर लग के I'll be very wealthy. It doesn't work out like that. Are you getting the point? I actually know a microbiologist and she's a PhD. इसलिए मुझे तो थोड़ी बहुत ये terms वगैरह आती हैं. She happens to be my wife. Now, just to explain this point, she was actually working in NARC on some project. जिसमें I can't recall the name, जिसके अंदर tissue culture lab में काम करी थी, right? And she was working on date palm का project था कोई. तो कोई specific breeds थी जिसको उन्होंने propagate करके उसको सिंध में और बलोचिस्तान के अंदर distribute करना था. अब ये काम गवर्नमेंट कर रही थी कि फंडिंग से हो रहे थे. Yet in parallel we came across few guys who were actually in mode of setting up the same facility on private sector basis. वही जो tissue culture की lab थी, they wanted to start that on their own. There are so many other people apart from government who might be interested in using the same facilities. For instance, came across somebody who had brought some very specialized breeds of rose and he was into perfumery. तो वो कोई French, मुझे अब मैं I don't know कि breed कहना चाहिए plants के बारे में कि नहीं कहना चाहिए, is that correct, right? So उसने कोई specific वहाँ से वो plants उठाए जिसको वो चाह रहा था कि उनको यहाँ पे culture करके और इनकी gardening वगैरह और proper commercial basis के ऊपर उसको start किया जाए. अब जो बंदा माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हो, यानी जो टेक्निकल नाउ हाउ भी है, इमेजिन करें अब वो एक बंदा एनएआरसी में काम कर रहे हैं और वही काम वो अपने प्राइवेट सेटअप में कर रहे हैं. किसका पोटेंशियल ज्यादा है जी? सेटिस्फैक्शन का भी, अचीवमेंट का भी और इवन कंट्रीब्यूशन का भी. बिकॉज
he would be the one जो के extra incentive दे के अपने researchers को 12 की बजाय 18 घंटे काम करने के ऊपर भी कायल कर सकता है. On the other hand, if someone is working in a public sector institute, by 4 o'clock he is already expired. 4 बजे के बाद आप काम नहीं ले सकते लोगों से. So, entrepreneurship can help you reach your full potential. You can contribute to the society and get recognized for it. Any day when I scroll down my Facebook wall, कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मुझे कोई कोटेशन देखने को ना मिले वॉरेन बुफे की, स्टीव जॉब्स की, मार्क ज़करबर्ग की. तो इन तमाम लोगों को एक सेलिब्रिटी स्टेटस मिला हुआ है. और पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जी प्रॉफिटेबिलिटी इज द प्राइम मोटिव फॉर एंटरप्रेन्योर्स. इनिशियली इट इज, लेकिन जो सक्सेस मिलती है विजन उनका थोड़ा ब्रॉडन अप होता है. बिल गेट्स आजकल वो किस लिए मशहूर है? चैरिटी के लिए, फिलैंथ्रोपी के लिए. अब according to our definition, if profit was the only thing, he had already achieved the apex that was, or the climax that was possible in this world. और वो जो एटीट्यूड होता है ना कि जी been there, done that, कर लिया, now it's time to turn around or give back to the society. And now everybody is recognizing his efforts. I mean, हम every other day we get to hear कि जी बिल गेट्स ने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट्स अगेंस्ट मलेरिया और जो भी डिजीजेस वगैरह या पोलियो की जो कैंपेन्स वगैरह चल रही, राइट. टेकिंग अ लोकल एग्जांपल, शाहिद अफरीदी साहब अभी मैच बांग्लादेश में जितवाते हैं और उसी वक्त न्यूज़ चैनल पे टिकर चलता है कि जी बैरिया टाउन ने शाहिद अफरीदी के लिए 1 कनाल प्लॉट का ऐलान कर दिया. I'm not sure if he ever got hold of that canal ka plot, but it made good marketing out of that whole situation. यानी इतनी ही promotion बैरियर टाउन का उनको वैसे खुद generate करनी हो तो उसके लिए उनको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे. लेकिन just one announcement and everybody is talking about बैरियर टाउन contribution cricket. ठीक है जी. And imagine in this scenario where you get in the business that is your passion. लोगों की हॉबीज हैं. अगर आप ऐसे बिजनेस में आते हैं that you are passionate about, तो you will not have to work any longer. For instance, anybody who is an avid drinker of coffee, a coffee shop business suits him excellently, right? So according to the taste कि किस बंदे का क्या passion है, he can pursue the business in the same direction. और जितना क्रिएटिविटी का पोटेंशियल शायद आप उस तरह के बिजनेस में that you are passionate about शो कर सकें, वो शायद किसी और बिजनेस के अंदर जहाँ पे आपको पुश किया जा रहा है टू ऑपरेट दैट बिजनेस, उसमें आप शायद डिमॉन्स्ट्रेट ना कर पाए. ठीक है जी. कोई भी सिचुएशन उस वक्त तक क्लियर नहीं होती when you just tend to see the benefits of it only. So in order to have a balanced view, we'll also have a quick look on the drawbacks of being an entrepreneur. First of all, uncertainty of income. At least in the initial phase, unless that business gets to a maturity level, you can never be sure if you are going to get profit in the initial stage or not. On the other hand, in employment arrangements, काम की नौयत जैसी तैसी भी हो, one gets to have a salary credited by 1st or 2nd of every month in his account. So uncertainty of income is a major challenge, at least in the initial phase. Another issue, ji, there's a risk of losing your entire investment. Risk of losing entire investment. Excuse me, I need to turn this off.
if any one of us was to start a business and let's assume कि we needed 5 million rupees, 50 लाख रुपया चाहिए टिश्यू कल्चर लैब लगाने, कहाँ से आएंगे? बैंक्स, थैंक यू। बैंक्स के बारे में सुन लें और ये गलतफहमी दूर कर लें कि वो न्यू बीज को लेंड करते हैं। वजह, दे नेवर एवर टेक रिस्क्स। जब बैंक आपको लोन देता है ना, ही एंश्योर्स कि उसके अगेंस्ट आपकी ऐसी कोई ना कोई एसेट उसके पास रहन रखवाया जाए, ये प्लेज करवाया जाए कि इन केस ऑफ योर फेलियर जिसको वो बेच के अपने पैसे रिकवर कर सके। दैट्स द बेसिक साइंस ऑफ बैंकिंग, राइट? और कौन जी, और कहां से पैसे मिलने हमें? पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली है। यूजुअली व्हेन वी टॉक, जी बेटा, जमीन बेच देंगे। ओके, इफ यू आर पैशनेट इनफ और आपको लगता है कि यार इतना सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये चांस भी लिया जा सकता है। बट यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि वन टेंड्स टू रिलाई अपॉन फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब इफ द बिजनेस टर्न्स आउट टू बी अ बिग हिट तो वो फ्रेंड्स एंड फैमिली कहेगी कि जी देखें इस बच्चे को जरूरत थी लेकिन हमने वक्त किया इस वक्त इसको हेल्प आउट किया एंड वी ऑफर्ड आवर 2 cents व्हाटएवर वी कुड। बट इन केस ऑफ फेलियर बहुत मना किया था इसको बहुत मना, आखिरी दिन तक मैं कहता रहा हूँ कि यार इसकी गाड़ी ले लो, सिविक ले लो, घर ले लो, इसका कोई प्लॉट ले लो, लेकिन नहीं माना। एंड ही इज लाइक यार मैंने ये बिजनेस करना ही है, करना ही। यार पाकिस्तान के अंदर समहाउ जो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस है, दैट्स अ चैलेंज। आई मीन विल फाइंड पीपल विद ब्रिलियंट आइडियाज, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस to get those ideas on track is somehow limited. Apart from friends and family, there are who we call them investor angels. Now these are people or individuals who are cash abundant, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन they do not have enough time कि वो छोटे छोटे मुख्तलिफ कारोबारों को look after करें. So what they tend to do is कि they are always on the outlook to find out individuals who have got good potential ideas और वो उनके साथ partner बन जाते हैं. So they contribute cash, entrepreneurs would rather contribute his skills or idea and he would execute it for them. और वो एक mutually decided basis की proportion के ऊपर बाद में profits वगैरह share करते हैं. ये बड़ी clear होता है, नुकसान होगा उनको, लेकिन उसको केटर किस तरह करते हैं ये अब एक इक्वेशन समझ लें। द फाइनेंस गाइस, उनकी पूरी जो एजुकेशन है वो एक अजम्पशन के ऊपर, और वो ये है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जिस काम में जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ही आप ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये एंजल इन्वेस्टर की जिम्मेदारी है कि बिफोर ही गिव्स his money or cash to that entrepreneur, he analyzes the whole business and determines that what kind of risks are associated with him. So if he finds the risks to be too high, he can ask for extra proportion of profit just in case if the business goes bust. ठीक है? One scenario that I would like to demonstrate here, just to tell you that what unconventional sources of financing can be available. मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा. Let's talk about any developed country, United Kingdom. यार अगर 1 करोड़ का घर हो, वो खरीदना हो पाकिस्तान में, आपकी जेब में कितने पैसे होने चाहिए? 1.5 करोड़। ऊपर वाले 50 का क्या करना है? अच्छे वाला घर है यार, उसके ऊपर नीचे की जरूरत नहीं है। परफेक्ट होम जिसके ऊपर रेडी टू यूज, आई मीन यू पे द कैश, यू मूव इन एंड यू स्टार्ट लिविंग। 1 करोड़ जी, पूरे पैसे होने चाहिए। यू नीड टू हैव ऑल दैट कैश इन योर बैंक अकाउंट और इन योर पॉकेट, राइट? डेवलप्ड कंट्रीज में अब ये खैर प्रोविजंस यहाँ पे भी आ रही हैं, ऐसा नहीं। लेट्स अज्यूम that if you were
to buy a home, let's say uski value 100,000 pounds. एक लाख पाउंड तकरीबन, आई नो आजकल का 1.5 करोड़ बनता होगा. You do not need 100,000 pounds in your pocket to get that home. Alternate क्या है? You can go for a mortgage arrangement. उसका मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि वो अरेंजमेंट होता क्या है. So there is a person who is ready to sell his property at this price. Let's call him the seller. I am the buyer, and if I carry around, दो चीजें मुझे चाहिए, around 10 to 15K कैश में चाहिए. उसके अलावा I need to have an income, annual income, जिसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो इस अमाउंट को एक्सीड करती. So let's say if I've got an annual income of 35,000 and I've got cash of this range, I will be able to qualify to get the mortgage. तीसरा प्लेयर आपका बैंक होता है. So what happens is कि मैं इसके साथ डिसाइड करता हूं कि I want to get this home और we mutually decide किया 100,000 के ऊपर the deal is done. Then I engage my banker कि जी मुझे आप ये mortgage के ऊपर arrange कर दें. So what bank does is कि वो अपने assessment individuals भेजते हैं, inspectors वगैरह, वो देखते हैं कि यार वाकई इसकी मालियत इतनी बनती है या नहीं बनती. And once they clear it, तो बैंक इस बंदे को तो 100,000 दे के कर देता है फारिग. मेरे साथ डिपेंडिंग अपॉन कि मैं उसको क्या रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मॉर्गेज 20 इयर्स की चाहिए, 25 इयर्स की चाहिए, 30 इयर्स की चाहिए, 10 इयर्स की चाहिए, वो अकॉर्डिंगली मेरे साथ मंथली असाइनमेंट इंस्टॉलमेंट्स कर लेगा. लेट्स अज्यूम द टर्न आउट टू बी 450 पाउंड्स पर मंथ. महीने के 450 पाउंड जहाँ पे मैं किराया दे रहा था उसकी जगह अब मैं किस्त देना शुरू कर दी. अब एक बड़ा क्लियर डिफरेंस है, मैं सारी जिंदगी किराया देता रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी. अब इवन ये थोड़ी सा ज्यादा भी हो किराए से तो एटलीस्ट दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर मी. फर्स्ट थिंग जी क्लियर यहाँ पे. नाउ लेट्स अज्यूम दैट आई एम अ वेरी गुड सिटीजन एंड आई टेंड टू submit or deposit this installment on every first of every month, or over a period of year and a half, bank realizes कि यार this person is good credit. ये बड़ा seriously लेते हैं अपनी financial commitments को. Depending upon my situation, वो थोड़ा बहुत analysis भी करेंगे. And not to forget कि जब तक मैं ये सारे पैसे पे ऑफ नहीं कर दूंगा, दिस प्लस द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, द इंटरेस्ट, उस वक्त तक जो प्रॉपर्टी है वो बैंक के नाम ही रहेगी. ठीक है. लेकिन बैंक क्या करता है, प्रॉपर्टी पहले उसके पास है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह. आफ्टर ईयर एंड हाफ, डिपेंडिंग अपॉन माई क्रेडिबिलिटी, ही कैन ऑफर मी लोन कि जी वी हैव फाउंड यू टू बी अ वेरी गुड पर्सन. ठीक है, आप क्रेडिबल हैं, रिलायबल हैं, योर सोर्सेज ऑफ इनकम आर रिलायबल, हमें नजर आ रहा है एक बड़ा क्लियर पैटर्न, सैलरी आ रही है, उसमें से डिडक्शन हो रही है. सो वी आर कॉन्फिडेंट कि यू कैन हैंडल अ क्रेडिट ऑफ लेट्स से, अगर ये 100,000 वैल्यू है ना तो इसके अगेंस्ट वो शायद 40,000, 60% वैल्यू कम करके उतना लोन वो आपको ऑफर कर सकते हैं. ठीक है जी. Now if I get 40,000 pounds in loan, I can start my business with it. ये वो 40,000 पाउंड है जो कि मुझे अदरवाइज और कोई भी नहीं देगा. अब in case of success, I can pay it off. In case of failure, the worst possible scenario, I declare myself default. I declare myself bankrupt. लेकिन उस केस में भी
सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड कंट्रीज, आपका रोटी कपड़ा मकान आपकी गवर्नमेंट इंश्योर कर रही होती, सो यू नीड नॉट टू वरी कि यार आप कहाँ पे जाएंगे, आपका छत छिन जाएगा। लेकिन आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, एंड इट माइट टेक यू ईयर्स एंड ईयर्स टू रिकवर दैट। सो दिस काइंड ऑफ फाइनेंसिंग इज यूजुअली अवेलेबल देयर। अब किसी बंदे के पास अगर सॉलिड प्लान है, ही कैन कैपिटलाइज इट ऑन इट अ बिग वे। So, we were talking about risk of losing your entire investment. Issue क्या है यार, जब हम रिस्क की बात करते हैं ना कि हमारी इन्वेस्टमेंट लूज हो गई है, अगर आप वो फ्रेंड्स एंड फैमिली से लेते हैं तो यार ये वो लोग हैं जिनके ऊपर हम सारी जिंदगी रिलाय करना होता है हम लोगों ने। सो इमेजिन करें कि आप वही आपकी जो सेफ्टी सर्कल है उसी को तबाह कर दें, तो द लाइफ फॉलोइंग दैट इवेंट कुड बी वेरी मिजरेबल। जी बेटा। बच्चे देखिए ना, उनके पास तो कैश उनके क्लोजेट्स में पड़ा हुआ है, वो उधर पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू तो उतनी रहेगी। जब वो मुझे देंगे तो मेरे से वो इंटरेस्ट उसके ऊपर भी लेंगे, प्रॉपर्टी के ऊपर भी ले रहे हैं, और जो मुझे लोन दे रहे हैं वो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है, उनका 1 रुपया भी रिस्क पे नहीं। जो टोटल वर्नरेबल सिचुएशन अगर है भी वो मेरी है। यानी अगर मैं इस सिनेरियो के अंदर इफ आई इन्वेस्ट इन अ बिजनेस दैट इज नॉट दैट प्रॉमिसिंग, तो आई एम रिस्किंग अ लॉट। बट ये मैंने आपको जो एग्जांपल है, आई हैव हाइलाइटेड दिस जस्ट टू टेल यू कि इट इज नॉट योर जस्ट फ्रेंड एंड फैमिली दैट कैन गिव यू कैश, देयर आर अदर अल्टरनेट्स एज वेल। एंजल्स की बात की, उसके अलावा कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं हु आर इन बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन एंटरप्रेन्योर्स, उनकी स्पेशलाइजेशन ही है। इसके अलावा जी जो एंटरप्रेन्योर्स को दुख बर्दाश्त करने पड़ते हैं ड्रॉबैक्स की सूरत में, उसमें एक लॉन्ग आवर्स और हार्ड वर्क भी। एटलीस्ट इन इनिशियल स्टेजेस वन हैज टू वर्क टिल आई डोंट नो व्हेन। आई मीन आप 9 to 5 वाले मोड के ऊपर बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं करते हैं। यू हैव टू वर्क लाइक 18 hours, 12 hours, I don't know, depending upon the scenario, and you have to work very hard, at least in the initial stage. कई लोगों को, अच्छा नहीं, इस बात को हम बाद में देखेंगे। While the business is being established, it's quite possible that you may get to face lower quality of life until that business is on track, right? शुरू में शायद आप ऑडी की बजाय मेहरान के ऊपर आपको गुजारा करना पड़े। क्यों? Initially you would like to spare as much cash available for the business rather than spending it on luxuries, and this is a major drawback. आमतौर पे the people who are inexperienced, what they tend to do is that they would get a loan and they will start getting these kind of things that actually do not contribute to the business, and it doesn't take them very long to go bankrupt. एक और इशू जी एंटरप्रेन्योर होने का, depending upon what industry you are in, you may face high level of stress. Usually when you are into employment, ठीक है जी, 9 to 5 tension ली, beyond 5 o'clock it's your life and you do whatever. But when it comes to business where you are actually getting work done from other people who are working around the clock, उसमें फिर आपका मोबाइल भी ऑफ नहीं होता और आपकी कम्युनिकेशन भी शट डाउन नहीं होती। आई कैन टेल यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। अ फ्रेंड ऑफ माइन इनटू फर्नीचर बिजनेस में, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जिक्र किया था, वी डू गेट टुगेदर्स एवरी मंथ, और उस बेचारे का जो आधा फोकस है वो हमारे साथ गपशप पे होता है और आधा फोकस अपनी टीम्स को मैनेज करने पे होता है। ही इज इनटू फर्बिशिंग बिजनेस, तो वो फिर 24 घंटे भी कई दफ़ा शिफ्ट चल रही होती है कि सामान पहुंच गया, वहाँ पे नहीं पहुंचा, वो बंदा गायब हो गया, बंदे को रिप्लेसमेंट लाओ, लेबर का ये इशू आ रहा है। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट ही हैज टू मैनेज लाइक राउंड द क्लॉक, एंड नॉट एवरीवन कैन डू दैट। हर बंदे की पर्सनालिटी के अंदर ये फ्लेयर नहीं है। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कैन बी stressful as well.
Last but not the least is discouragement. और इसको आप लोगों ने मेरे लिए टेस्ट करके आना है, इस थीसिस को, कि people around you tend to discourage you from doing business. ये हॉस्टलाइट्स कितने हैं हमारे पास? बाकी सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करते हैं, मोर और लेस. आज बच्चों आपने करना ये है कि जब आप डिनर कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि अंकल आंटी दोनों प्रेजेंट हैं, एंड यू लाउडली टेल देम कि जी आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग माय ओन बिजनेस. एंड आई वुड लुक फॉरवर्ड टू हियर कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है. I'm not giving a sweeping statement that every parent or every sibling is like that, but usually people who are not into business, they tend to discourage you कि यार बस लाइफ अच्छी खासी चल तो रही है तो इसमें good for you. That's why I told you that I'm not giving a sweeping statement. Exception would be there. Students, welcome to lecture number 3. And we'll start this lecture by taking few questions. Ji. Sir, entrepreneurship and entrepreneurship. Entrepreneurship or entrepreneurship. By the way, how do you spell them? I. This is a topic जो कि हम लोग usually conclusion of the course में discuss करते हैं, लेकिन since you ask me now, entrepreneurship ई से है जो that we have thoroughly discussed so far. जो भी हमारी discussion है, it is about individuals who are doing whatever they are doing for profit. They are running their own businesses. Entrepreneur, on the other hand, is spelled as I-N-T-R-A. These are the individuals who are creative, who are innovative, who have got good ideas which can be translated into products and services, but rather than starting their own businesses, they tend to give these ideas to their employers. For the organization जिनके लिए वो jobs का जहाँ पे कर रहे होते हैं, तो starting their own business की बजाय they've got a clear choice कि I will give this idea for promotion of my organization, in hope कि the organization will compensate them accordingly. ठीक है, my thesis is on entrepreneurship currently that I'm working upon. जी बेटा. Difference between business and entrepreneurship. Another interesting question, the difference between business and entrepreneur. Usually you'll find people using these two terms interchangeably, but first let's try to understand कि फर्क क्यों आता है. Yes, generically they can be interchangeably used, लेकिन perspective का difference है. Here, if I ask you to define a car for me, क्या basic components हों जिस चीज़ के अंदर अगर वो जुड़े हुए हों तो हम उसको कार कहेंगे? Probably भी जो हम definition बनाएंगे उसमें हम 4 पहियों का जिक्र करेंगे, engine का, steering wheel का, clutch plate, gear box, जो minimal requirement हैं, shocks वगैरह का. Sorry? Diggy? Okay. Include diggy as well. So let's assume that we agree upon a definition of basic car. अब इस definition के ऊपर मेहरान भी as car qualify कर रही है, Mercedes भी as car qualify कर रही है, and so is the case with Jaguar. Jaguar भी आपकी इस definition में, उसमें 4 पहिए भी हैं, engine भी और डिग्गी भी, right? But if I ask you to define a luxury car for me, now, sorry? Leather seats. Leather seats, hand stitched maybe. Now you'll start talking about coefficients कि जी आपके torque इतना होना चाहिए, 0 to 100 under 7 seconds के अंदर हो, suspension का ये coefficient होना चाहिए, and you come up with very fine details of what to have and what not to have. अब अगर हम इस definition पे भी agree करते हैं, तो इस पे Mercedes पूरा उतरती है, yes maybe क्योंकि that's a luxury car. Jaguar शायद पूरी आए, BMW आए. Where does our Mehran stand? नहीं.
इकोनॉमिक्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, इकोनॉमिक्स इज मदर ऑफ द होल मैनेजमेंट साइंसेस का जो एक है ना स्ट्रीम ऑफ नॉलेज। इकोनॉमिक्स की बुक पकड़ेंगे ना तो उसमें एनीवन हु इज असेंबलिंग नेसेसरी रिसोर्सेज और विदाउट क्रिएटिविटी भी अगर उसने सिर्फ चावल स्टॉक किए और बेच दिए कुछ अरसे के बाद, ही इज एन एंटरप्रेन्योर। लेकिन जब हम लोग पर्टिकुलरली वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एज सब्जेक्ट, तो फिर हम जरा थोड़ा इज्जतदार लेवल के ऊपर थोड़ा और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की कोशिश करते हैं, जो कि आगे हम लोगों ने खैर डिस्कस करने थे, बट आई विल गिव यू क्विक व्यू। वी ट्राई टू इवैल्यूएट दैट हाउ क्रिएटिव द आइडिया इज, वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू एडिशन है वो किस हद तक है, जो वो पहले कंपटीशन से किस हद तक डिफरेंट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लग्जरी क्वालिटी businessmen, and we tend to call them entrepreneurs. In generic terms, yes, these are the terms that can be used interchangeably. जी, और कोई क्वेश्चन पिछले लेक्चर से? No? Right जी, आज अभी जो हम लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे, we'll be talking about the forces that are driving the growth of entrepreneurship, and we would also like to have a look on the cultural diversity that entrepreneurship presents, and also try to put failure in perspective. Where are my slides? Feeding the entrepreneurial fire. I'm not sure about the biosciences, लेकिन मैनेजमेंट साइंसेस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑपरेशंस मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एनी बुक दैट यू पिक, यू गेट टू रीड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इन वन चैप्टर और द अदर। यानी एक ऐसा कॉमन टॉपिक है दैट पासेस थ्रू ऑल ऑफ द एजुकेशन दैट इज और द नॉलेज दैट इज बीइंग डेवलप्ड इन एनी स्ट्रीम इन मैनेजमेंट साइंसेस। और अगर आप नोट करो, आज से 10-20 साल पहले की निस्बत द रेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस हैज ग्रोन अ लॉट। आज से 10 साल पहले इस रेट के ऊपर बिजनेसेस नहीं आ रहे थे मार्केट के अंदर। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं उन एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की जिनकी वजह से हमें ये एक पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है या एक ट्रेंड नज़र आ रहा है जिसमें लोग प्रेफर कर रहे हैं टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। पहले नंबर पे जी, entrepreneurs are being treated as heroes. पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, अभी बिल गेट्स का लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जिक्र किया था। Yes, he made lot of money, लेकिन now we see him as a messiah for the people जो कि अभी भी उन बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं जो कि इजीली अवॉइडेबल। मलेरिया इज ऑल टुगेदर अवॉइडेबल। जिन इलाकों में मलेरिया कम है वो क्यों कम है? यू गाइस टेल मी, बायोसाइंटिस्ट। क्लीनलीनेस की वजह से। कुछ बेसिक चीजें आप ठीक अरेंज कर लें तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रेड ऑफ मलेरिया आउटब्रेक है कम हो जाती है, राइट? इसी तरह वैक्सीनेशंस, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी एक इशू है। जो आपके फार फ्लंग पुअर कंट्रीज के एरियाज हैं वहाँ पे टाइम पे वैक्सीनेशन ही नहीं हो पाती। अब उसकी अवेलेबिलिटी अगर मिल जाती है तो उससे भी वो चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। पोलियो का वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे सामने, आई मीन इट्स वेरी सैड कि हम लोग जान ही नहीं छुड़वा पा रहे। दरमियान में क्लियर हुआ था एंड देन अगेन द वायरस रीअपीयर्ड। तो क्या जरूरत है भाई बिल गेट्स को इन तमाम कामों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने की? इमेज एक, लेकिन रिसोर्सेज बच्चे कई लोगों के पास हैं, रिसोर्सेज कई लोगों के पास हैं यार। दिस थॉट कि यार मैंने इस दुनिया से बहुत फायदा उठा लिया, इट्स टाइम टू पे बैक। मैं इस दुनिया के लिए क्या करके जा रहा हूं, लेगेसी क्या है आपकी? और इट्स फॉर दैट रीजन वी टेंड टू सी देम एज हीरोज। आई विल कम टू यू। यार वॉरेन बुफे ने एक बिलियनियर क्लब बनाया है जिसके अंदर ही इज एनकरेजिंग द डॉलर वाले बिलियनियर्स, नॉट पाक रुपी वाले बिलियनियर्स, कि वो लोग अपना बिजनेस अभी तो जिस तरह द वे दे आर रनिंग इट, ही इज एनकरेजिंग देम टू डू इट एंड टेक इट टू फर्दर क्लाइमैक्स। बट व्हाट ही इज सजेस्टिंग इज कि आपने जो विल लिखनी है ना अपनी, उसमें डोनेट योर फॉर्च्यून्स फॉर बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड।
It's a club और इसमें कई लोग from all over the world they have already signed up, including few billionaires from China as well. आपका क्वेश्चन था बेटा? हो गया क्लियर? थैंक यू. नेक्स्ट जी, entrepreneurial education, and in simple terms let's call it business education. आज से 40 साल पहले if someone had to do a degree in business from Punjab, शायद 2 या 3 यूनिवर्सिटीज थी जो कि MBA ऑफर कर रही थी, और वो लकी लोग होते थे जिनका वो मेरिट लिस्ट में नाम आता था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कि जी यू आर अमंग दोज 100 or 50 students who have been selected from all over the province. अब सूरत हाल ये है कि with expansion of or introduction of new universities and in particular their sub campuses, the first degree that gets offered is business, BBA. Reason, जो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और उसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए दैट इज इजीली अवेलेबल, दैट कैन इजीली बी मूव फ्रॉम वन सिटी टू another, right? And it turns out to be a cash cow business. Forget degrees, forget formal business education. Here, if you're doing business, let's say I want to sell this rubber, and in order to differentiate my rubber from others that are already in market, I'm thinking of wrapping it in some packaging. Assume that I have got no background of management sciences. All I need to do is just Google how to package my product. And literally, there are millions of pages telling you what to do and what to avoid when you consider the packaging. Even किस texture की होनी चाहिए, किस material की होनी चाहिए, किस color की होनी चाहिए. You can easily get expert advice from internet on any issue whatsoever. So the education is now widespread and easily accessible. You do not need to have an MBA in order to get started with your business. Then you've got demographic and economic factors. If we are having a population outburst, right, and assuming that our government or private sector will be able to generate employment for everybody is a kham khayali. ठीक है? So if it is clear that not everybody can be employed, so people at times are left with no choice but to start their own businesses. Right? तो कई दफ़ा इकोनॉमिक्स जो है वो आपको चर्न कर रही होती है, मजबूर कर देती है. On the other hand, at times it is the opportunities in the economics that actually help you get into businesses. For instance, I know a chap from Islamic University. He was a gold medalist in MCS, computer sciences, and he was doing brilliantly as a career in software. And one day he said, enough with software. The government had offered incentives on wheat growing. जो वो इमदादी कीमत कहते हैं ना कि जी मिनिमम प्राइस जिसके ऊपर गवर्नमेंट खरीदेगी गंदम, वो शहबाज शरीफ साहब ने ऑल टुगेदर 200-300 एक ही सीजन के अंदर बढ़ा दी थी. And that was a huge incentive for the farmers. So he left that software engineering का काम, उसने कहा यार this is not that good. He went back to his farms and started farming. So economics की जो shift है उस बंदे ने उसका फायदा उठाया, right? और बाद में उसने कुछ वैल्यू एडिशन सर्विसेज में उसमें इंट्रोड्यूस करवाई. लेकिन इट्स नॉट जस्ट कि आप मजबूरी के अंदर ही काम स्टार्ट करते हैं. एट टाइम्स देयर आर अपॉर्चुनिटीज जिनको आप एक्सप्लॉइट करते हैं. शिफ्ट टू सर्विस इकोनॉमी.
You've got one sector called agriculture, जिसमें जितनी आपकी ज़मीन है उसके ऊपर आप काश्तकारी करते हैं, उससे क्रॉप्स की यील्ड लेते हैं और उसको विद इन द कंट्री और एक्सपोर्ट करके आप एक इकोनॉमिक वैल्यू गेन करते हैं। अगर आप यूएस की हिस्ट्री देखो तो आज से 3-4 सदियां पहले जो मेजर चंक ऑफ देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता था, दैट यूज्ड टू बी फ्रॉम एग्रीकल्चर, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विस सेक्टर का पार्ट बहुत कम था। लास्ट सेंचुरी के स्टार्ट में वी गॉट टू विटनेस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहां पे आपकी प्रोडक्शन लाइंस इंट्रोड्यूस हुई और जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड वो ऑल टुगेदर जाइगेंटिकली इंप्रूव हुआ एज कंपेयर टू जब डोमेस्टिकली चीजें बन रही थी। उसका नतीजा क्या निकला? कॉन्सिक्वेंटली द contribution of manufacturing sector increased as percentage of total GDP, और जो contribution of agriculture थी वो squeeze हुआ, despite the fact कि yield per acre was improving। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इसलिए पॉसिबल था क्योंकि इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो कर रही थी। रिलेटिव टर्म्स में बोथ द सेक्टर्स वर ग्रोइंग, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था दैट वाज ग्रोइंग एट अ फार हायर पेस देन एग्रीकल्चर। यही फिनोमेनन रिपीट हुआ है इस सेंचुरी के बिहेस्ट पे, वेयर योर सर्विस सेक्टर इज नाउ टेकिंग ओवर मैन्युफैक्चरिंग। एग्रीकल्चर तो पहले ही टेक ओवर हो गया मैन्युफैक्चरिंग से, अब आपका सर्विसेज सेक्टर जो है वो तगड़ा हो गया। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर एक आम बंदे के लिए इट्स मच इजियर टू स्टार्ट अ बिजनेस। एग्जांपल लेते हैं, सईद बुक बैंक, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन देयर? गुड, गप मारनी अभी आप लोगों ने। इफ वी वर to establish a competitor for Said Book Bank, उसी स्टेचर का अगर साथ वाला प्लाजा अगर हम लेना चाहें, just give me some ballpark गप फिगर के कितने करोड़ लगेंगे? बहुत नहीं, give me some, that's very convenient, बहुत 12-13 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़ नहीं बचे, वो तो बहुत कम है। 25 करोड़ चले जी, वो आपका हुआ, इलेक्ट्रो आपका हो गया 25 करोड़। एनीवेज, नाउ सेटिंग अप अ कंपेटिटर बिजनेस फॉर एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, एक बॉल पार्क फिगर बात करूंगी, लेट्स से वो 10 करोड़ या 15 करोड़ लगते हैं। इफ वी टॉक अबाउट सर्विसेज इकोनॉमी वेयर यू हैव प्रोविजन ऑफ स्टार्टिंग ऑनलाइन bookstore, you may not necessarily need that much of cash. Are you getting it? By securing good suppliers, reliable suppliers who are digitally connected with you, you can cater a far wider audience of customers, not just Pindi and Islamabad. So anyone, at least in Pakistan or even globally, can access that website, order the book that he or she likes, and it could be delivered to his or her doorstep the next morning. जी बेटा। सर ये हम मार्ट के एग्जांपल भी हम इसमें ले सकते हैं। किसकी मार्ट? हम मार्ट? Explain it. It's the first time I've heard about it. सर हम मार्ट ये हम टीवी वालों का तो नहीं है? ओपन इन कराची, Okay. ग्रोसरी स्टोर, यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन कि आप कुछ मंगवाना चाहें घर की ग्रोसरी, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें There you go. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द स्टोर एंड बाइंग इट। Right. Now this setup, उनके कोई effectively retail outlets भी हैं parallel, या सिर्फ वो ऑनलाइन कर रहे हैं? ऑनलाइन। नाउ इफ दे आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन, इसका मतलब ये है कि उनको रिटेल एंड वाली फटीगे बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। टॉक अबाउट एनी लोकल कैश एंड कैरी, उनके एम्प्लॉयज का आधा ध्यान इस चीज में होता है कि उन्होंने थेफ्ट को रोकना है, राइट? एंड दे हैव टू कीप एवरीथिंग फेस्ड अप सो दैट इट लुक्स गुड व्हेन कस्टमर्स वॉक इन। ये फटीग हम मार्ट को नहीं,
क्योंकि उनको जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं उन्होंने उनको वन वे और द अदर बॉक्स करके कस्टमर तक पहुंचाना। देखो सिर्फ वेयर हाउसेज मेंटेन करने हैं, तो वेयर हाउसेज मेंटेन करना एज कम्पेयर टू एक रिटेल फैसिलिटी ऑपरेट मेंटेन करना इज फार फार ईजियर। सर लेकिन कि उस बिजनेस के लिए तो कॉस्ट कम कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर के लिए तो डिलीवरी कॉस्ट ऐड करके प्रोडक्ट कॉस्ट सारा बच्चे उस पे जो स्केल ऑफ बिजनेस है ना, दैट मैटर्स अ लॉट। जब आप बिजनेस को का वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना, तो आपकी जो पर यूनिट ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम होना शुरू हो जाती है। यानी एक स्टोर सिर्फ रोजाना की 3 डिलीवरीज कर रहे हैं और एक स्टोर जिसने रोजाना की उसकी सेटअप ही इस तरह का है कि उसने रोजाना की 50, 70, 100 डिलीवरीज करनी है, तो वो सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए या एक ह्यूमन जजमेंट को यूज करते हुए दे कैन कम अप विद आइडियाज और द वेज जिसके अंदर वो सस्ते तरीके से इस चीज को डिलीवर कर सके। जी बेटा। होल्ड ऑन उसके कुछ चैलेंजेस का सोल्यूशन है। पहले नंबर पे आई हैव नॉट यूज्ड दैट फैसिलिटी, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग दीस डेज इज दे विल गेट हियर, आई टेल यू दे विल गेट हियर। यार उसका एक तो आजकल जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं यूजुअली यू गेट टू वेरीफाई योरसेल्फ यूजिंग योर मोबाइल फोन, राइट। तो वो एक बड़ा क्लियर एक चीज है कि आपका नाम शाम जो नो दैट कैन बी इजीली वेरीफाइड यूजिंग दैट नेटवर्क। तो भागना इतना आसान भी नहीं है। ऐसे होता था सर, मैंने कॉल सेंटर में एक टाइम पे काम किया था सर, तो मैंने एक आंटी थी उनको सर एक IPTV बॉक्स सेल किया था। तो वो जब उनकी डिलीवरी हुई है ना, तो वो आंटी ने कहती मैंने तो मंगवाया नहीं, हालांकि वो मेरे पास कॉल की ऑफिशियल रिकॉर्डिंग पड़ी थी। तो मेरा जो फ्लोर मैनेजर था वो कहता हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब क्या उसने कॉल पे कह दिया तो मैं क्या कहूँ कि अब तुमने कहा है तो लो, ऐसे नहीं हो सकता। ऐड मुमकिन है बाद में अंकल ना माने हो। she might have bought it with the assumption कि अंकल को डिनर पे मना लिया जाएगा कि यार ये चीज आ रही है। और but anyways I tell you, जब when you talk about business they work with such probabilities, यानी 1, 2, 3% wastage is something जो कि आप on books अपने पास रखते हैं। इवन अगर आप रिटेलर्स की बात करें ना, तो उनको पता होता है कि यार एक certain percentage is going to become bad debt। जितना भी आप उधार पे सामान देते हैं, you would be a lucky person if you get to recover all of it, be you in any business। तो एक certain percentage है, वो depending upon कि business कितना strong है, तो वो आप एक tolerance level अपने लिए maintain करते हैं। otherwise आप business नहीं कर पाओगे। यानी अगर आप 1-1 रुपए के ऊपर दुख करना शुरू कर दो, लड़ना शुरू कर दो कि मुझे पैसे दो, you won't be able to operate। Sir, what if you set in such a way कि आप ऑनलाइन ही पे करो? एडवांस पेमेंट भी हो सकती है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड। आई हैव यूज्ड द सेम सर्विस इन इंग्लैंड। टेस्को वहाँ पे एक रिटेलर है, सो वी ऑर्डर्ड ऑनलाइन अराउंड 35 to 40 पाउंड्स की ग्रॉसरी थी, नहीं रादर इट वाज 70 पाउंड्स अप्रोक्सीमेटली, और उन्होंने अपफ्रंट पेमेंट ली एंड दे आस्क्ड फॉर अ विंडो ऑफ 2 आवर्स कि जी किस दिन आप इन 2 घंटों के दरमियान अवेलेबल हैं, उस दौरान गाड़ी आ जाएगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सो यू कैन मेक द पेमेंट एडवांस वाली कि आप पहले ही पैसे ले लो। उस केस में आंटी का इरादा भी नहीं बदलेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, थैंक्स फॉर योर एक्साइटमेंट, आई एम थैंकफुल टू यू। Technological advancements are also helping feeding the fire for entrepreneurship. And I can still recall that the first PC that I got was Pentium 1 back in 1998. It costed around 80,000 rupees, और ये आज के 80,000 नहीं है, 2019 के, ये उस जमाने के 80,000 है। I can still recall कि इंतहाई VIP ट्रीटमेंट उस कंप्यूटर को दिया जाता था। बच्चों की प्रायोरिटी बाद में आती थी, पहले Pentium 1 मशीन की प्रायोरिटी। एयर कंडीशनर ऑन करना है जी, हर वक्त कपड़ा उसके ऊपर होना चाहिए, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड एंड स्टफ लाइक दैट। एग्जैक्टली। नाउ you can go to the market and for a fraction of that cost you can get a super computer when it with regards to the personal computer की मैं बात कर रहा हूँ, कि आप एक बहुत अच्छी मशीन बना सकते हैं, राइट। When I was in Islamic University as a student, हमारी लैब में
एसर की मशीन्स आई जी और 20 कंप्यूटर्स थे या 40 थे. वुड यू बिलीव कि एक डायल अप कनेक्शन था जो कि वो सब के सब कंप्यूटर्स शेयर करते थे. ये सब वो डायल अप वो बहुत अजीब सा सिस्टम है. डायल अप इंटरनेट कनेक्शन, यानी अगर वो आप इफ यू रन दैट ऑन सिंगल पीसी it would take you minutes and minutes to even just open your email. Yes, sir. That was shared in the whole lab. And I'm not exaggerating. What we would do is that we will sign in, press karke, we'll go for lunch, come back and the inbox would be open by then. Now compare that with the scenario that we have today. On the go we are enjoying 4G or 5G और पता नहीं किस किस तरह के जिक्र सुनने को मिल रहे हैं. It has become a lot more convenient. Technological advancements have now actually engulfed us. Then another thing that is helping in promotion of entrepreneurship is the independent lifestyles. Independent lifestyles. People who are educated somehow now prefer कि उनको रोजाना किसी के लिए आंसरेबल ना होना पड़े किसी के आगे. भाई कम कर लो, अच्छा कर लो, right? So rather than working under a boss in certain circumstances, what they tend to do is they prefer कि यार I'd rather do my own business. I'll give you a real life example. A friend of mine is running his restaurant in Glasgow, and the operating hours actually start from 1 o'clock. And why is he running that restaurant? वो कहता है कि मैं सुबह क्यों उठूं? I cannot do that. Now, if he was into some job, he would have to. उसके पास choice ही नहीं होगी. But now, by choice, उसने कहा मैं अपनी नींद पे compromise नहीं कर सकता. उसके लिए बेशक मुझे अपने career पे compromise करना पड़े. So his restaurant would operate through the night till 3 a.m. वो ठीक ठाक उसकी hectic routine है. Yet he is enjoying his job. His work. Then e-commerce and World Wide Web. Huge, huge, huge impact. Talk about ladies, in particular ladies bags. Go to Centaurus, go to Giga Mall, वही 10-15 दुकानें हैं जिसमें वही total 20-30 designs हैं, right? सब जगह वही है, confirm है? Okay. Yeah. Now, if you wish to try, if you want to have a different bag for someone, so rather than going to Giga Mall or Centaurus, what you can do is simply download AliExpress.com. वो उनकी आप वो भी ट्राई किया हुआ है. पर मेरे इर्द गिर्द लोगों की फीडबैक इतनी बुरी नहीं है. अब हो सकता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन it has become a lot more convenient due to availability of World Wide Web, coupled with advanced logistic facilities. ये जो courier service itself है ना, remove that from today's mankind, धड़ाम से पूरा business बंद हो जाता है. And all of the retailers are now in the process of getting their apps. Even the Carrefour, Hyperstar, they've introduced their app, whereby they are encouraging you to install that, right? And you will have a record of all the purchases that you have done. आपकी तमाम की तमाम receipt का record, किस वक्त आपने किस तारीख को क्या चीज़ खरीदी थी. उसके अलावा they are offering you bonus points there. और उसके against आपको rebate मिलेगा या discount मिलेगा जब आप next time purchases करते हैं. International opportunities. NAFTA का नाम सुना हो आपने जी? NAFTA नहीं, NAFTA, NAFTA, North American Free Trade Agreement. EU, European Union का नाम सुना हुआ है? In countries में, in order to promote commerce,
they've actually broken down all the trade barriers to promote the commerce in these countries. And again, given the logistic facilities, it has become a lot easier to conduct your business internationally. I can tell you out of experience, 4-5 countries तो मुझे भी गुजरने का मौका मिला है. You won't even realize कि कब आप एक कंट्री से निकले हैं और दूसरी कंट्री में पहुंच चुके हैं. And so is the treatment of the cargo trucks, जो कि शायद पोर्टुगल से निकल के इटली या कोपेनहेगन, डेनमार्क या जर्मनी जा रहे हैं. इधर कोई ट्रक लाहौर से रावलपिंडी आए ना, तो उसको 5-6 जगह पे सलामी पेश करनी पड़ती है रोक के. Right? It's one country, one region. Just imagine the constraints that our traders have to go through, and compare that with the provisions that the traders and businessmen are enjoying there. But with every passing day, the barriers for international trades are falling. कम हो रहे हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फोकस ही इस चीज़ पे है कि अल्टीमेटली दे सी द होल वर्ल्ड as one marketplace, whereby every country would contribute the products and services that they are good at manufacturing and get the other products from other countries or trade with other countries जिसके अंदर उनकी specialization नहीं. All right.